ओके, हमारा टॉपिक है ADHD। In the first paragraph, the writer questions whether adult ADHD should have been recognized as a disorder at an earlier date. ADHD should be diagnosed in the same way for children and adults. ADHD can actually be indicated by neurological markers. Cases of ADHD have genuinely increased in USA. The American Psychiatric Association recognized attention deficit hyperactivity disorder as a childhood disorder in 1960s, but it wasn't until 1978 that the condition was formally recognized as afflicting adults. In recent years, the USA has seen a 40% rise in diagnosis of ADHD in children. It could be that the disorder is becoming more prevalent, or as seems more plausible, doctors are making the diagnosis more frequently. The issue is complicated by lack of recognized neurological markers for ADHD. The APA, American Psychiatric Association, relies instead on a set of behavioral patterns for the diagnosis. It specifies that patients under 17 must display at least 6 symptoms of inattention or hyperactivity. Adults need only display 5. रीड करें क्वेश्चन फिर से। जी रीड, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। रीड करें लाउडली। मैं तो ऑप्शन पढ़ना शुरू हो गई थी कि आंसर कौन सा बनता है। The American Psychiatric Association APA नहीं वो recognized तो मैंने पूरा पढ़ लिया, वो तो मैंने ऊपर disorder. क्या कर रही हैं आप? वो मैंने पूरा पढ़ हाँ लिया, हाँ आपका ध्यान कहाँ पर है? मैं कह रहा हूँ ऑप्शंस पढ़े, रीड करें लाउडली, ऑप्शंस हाँ। पढ़ो। In the first paragraph, the writer questions whether first option adult ADHD should have been recognized as a disorder of an earlier date. ADHD should be diagnosed in the same way for children and adults. ADHD can actually be indicated by neurological markers. Cases of ADHD have generally increased in the USA. जी क्या अटेम्प्ट करेंगे आप इनमें से? मुझे इनमें से लग रहा है डी। बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ऐसी कोई बात करी नहीं थी कि अर्लियर डेट पे हो डिस्कस। उसके बाद उन्होंने अडल्ट ADHD अपना ADHD शुड बी डायग्नोज सेम में नहीं, 5 और 6 का डिफरेंस था, 6 और 5 का। ADHD के एक्चुअली भी नहीं, न्यूरोलॉजिकल मार्कर्स नहीं है, तभी तो बिहेवियरल पैटर्न्स देखते हैं। हाँ बिल्कुल, जो ADHD के केसेस हैं वो यूएस में इंक्रीज़ हुए हैं, इसीलिए जो है डॉक्टर्स ने उनको डायग्नोस करना शुरू कर दिया। ठीक है, हाँ, क्योंकि ये अगर इन रिसेंट ईयर्स देखें ना, थर्ड लाइन में, in recent years the USA have been a 40% rise in diagnosis of ADHD in children. बिल्कुल It could be that the disorder is becoming more prevalent. तो more prevalent से मुझे लगा जो केस है वो इंक्रीज हो रहे हैं। बिल्कुल। What does Dr. Saul object to? The suggestion that people need stimulants to cope with everyday life. The implication that everyone has some symptoms of ADHD. The grouping of imprecise symptoms into a mental disorder. The treatment of ADHD suggested by Dr. Barclay. ADHD can be a controversial condition. Dr. Russell Barclay, professor of psychiatry at the University of Massachusetts, insists the science is overwhelming. It's a real disorder which can be managed in many cases by using stimulant medication in combination with other treatments. Dr. Richard Searle, a behavioral neurologist with 5 decades of experience, disagrees. Many of us
have difficulty with organization and details, a tendency to lose things or be forgetful or distracted. Under such subjective criteria, the entire population could potentially qualify. Although some patients might need stimulants to function well in daily life, the lumping together of many vague and subjective symptoms could be causing a national phenomenon of misdiagnosis and overprescription of stimulants. What does Dr. Sehel object to? A. The suggestion that people need stimulants to cope with everyday life. The implication that everyone has some symptoms of ADHD. The grouping of imprecise symptoms into a mental disorder. The treatment of ADHD suggested by Dr. Barclay. जी क्या जवाब आपका? मुझे ये ना सेकंड लास्ट लाइन से लगा है, उसकी सिम्टम्स जो है ना वो द लंपिंग टुगेदर ऑफ मेनी वेग एंड सब्जेक्टिव सिम्टम्स कुड बी कॉजिंग अ नेशनल, ये मिसडायग्नोज के लिए और ओवर प्रिस्क्रिप्शन के लिए, तो मुझे इससे लगा इम्प्रिसाइज सिम्टम्स इनटू अ मेंटल डिसऑर्डर द ग्रुपिंग। मुझे नहीं पता वैसे क्या आंसर है। लग तो मुझे भी सी रहा है और करेक्ट आंसर सी है। क्या है? सी ही करेक्ट है इसका। ठीक है, वो कह रहा है कि जो सेवल है वो कहता है कि हर किसी के साथ ये तो मसला है डिसऑर्गेनाइजेशन का। तो तुम लोग ये करोगे कि घर में 6 बंदे हैं, मिसाल किसी को की भूल जाती है उठाना, कोई चाय का कप रख के भूल जाता है, ठीक है, कोई चाय का कप पीते पीते डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, कोई बच्चा जो है वो बैठा हुआ है यहाँ लिख रहा है, वहाँ टीवी देख रहा है, टीवी को देखते हुए कहीं और सोच रहा है। तो ये ADHD जो है वो तो बहुत मतलब इसके हिसाब से वो है कि भाई तुमने एक इम्प्रेसाइज सिम्टम, प्रिसाइज बोलते हैं जो परफेक्ट हो, ठीक है, इम्प्रेसाइज जो मतलब इम्परफेक्ट हो, कि तुमने क्या किया, एक गटजुमा बना लिया सिम्टम्स का और तुमने उसको मेंटल डिसऑर्डर कह दिया कि किसी का भी अगले का ध्यान ना लगे किसी चीज़ में तो वो कहे मुझे मेंटल डिसऑर्डर है। ओके, द राइटर regards the study of children in foster care as significant because it highlights the difficulty of distinguishing ADHD from other conditions, focuses on children known to have complex mental disorders, suggests a link between ADHD and child's upbringing, draws attention to poor care given to such children. A recent study found children in foster care 3 times more likely to be diagnosed with ADHD. Researchers also found that children with ADHD in the foster care were more likely to have another disorder, such as depression or anxiety. This finding certainly reveals the need for medical and behavioral services for these children, but it could also prove the non-specific nature of the symptoms of ADHD. Anxiety and depression or an altered state can easily be mistaken for the manifestations of ADHD. Again, जो स्टडी ऑफ चिल्ड्रन इन द फोस्टर केयर हुई थी उसके बारे में राइटर क्या सिग्निफिकेंट देखता है? बिकॉज इट हाईलाइट्स द डिफिकल्टी ऑफ डिस्टिंग्विशिंग ADHD फ्रॉम अदर कंडीशंस, focuses on children to have non-complex mental disorders, focuses on children known to have, not वो वाला known, okay, suggests a link between ADHD and child's upbringing, draws attention to poor care given to such children. इसमें मुझे ये लग रहा है क्योंकि उसने कहा था डिफिकल्टी ऑफ यानी कि ADHD को दूसरी कंडीशन के साथ उसने बात की है उसके अंदर पहली 2 लाइनों में। बात तो सही है आपकी और की में भी यही है, बिल्कुल सही कह रही है। नाइस, यही है क्योंकि पहली वाली 2 लाइन में बात सीधी थी कि चिल्ड्रन जो वहां पे है ना उनको दूसरी कंडीशन का ज्यादा है चांस, मोर लाइकली से, वो जो डिप्रेशन और एंजाइटी की एग्जांपल दी है उन्होंने। ओके, तो वो अदर कंडीशन था। ठीक है। इन द 4th पैराग्राफ द वर्ड दे रिफर्स टू syndromes question study origins। जो वर्ड दे है यहाँ पे, दे एको अर्लियर रिसर्च फ्रॉम न्यूजीलैंड, दे एको अर्लियर रिसर्च फ्रॉम न्यूजीलैंड। ADHD, the thinking begins in the childhood. In fact, in order to be diagnosed with
as an adult, a patient must demonstrate that they had traits of the condition in childhood. However, studies from UK and Brazil published in JAMA Psychiatry are fueling questions about the origins and trajectory of ADHD, suggesting not only that it can begin in childhood and that it can begin in adulthood, but there may be two distinct syndromes: adult onset ADHD and childhood ADHD. They echo earlier research from New Zealand. क्या करेंगे अटेम्प्ट? अगर देखा जाए तो however के बाद जो सेकंड लाइन ये है however कॉन्ट्रास्ट वर्ड, उसमें स्टडीज के अंदर ये सारी बात चल रही है। उसके बाद कोई ऐसा सब्जेक्ट की बात नहीं आई कि इसमें ये है और इसमें ये है। तो ये सारी बात स्टडीज के अंदर की डिटेल दे रहे हैं कि ये है जो दो बातें कही उन्होंने, और तो मुझे कोई वर्ड नजर नहीं आया इसके अंदर। पब्लिश हुई, फिर स्टडी ने सजेस्ट किया, फिर उन्होंने कहा कि दो है सिंड्रोम्स इसमें, जो एडल्ट है और चाइल्डहुड है। ये सारी बात स्टडी के अंदर ही चल रही है, इसकी स्टोरी चल रही है स्टडीज की। तो इसके अलावा मुझे तो कोई और सब्जेक्ट नजर नहीं आया जो दे को प्रेजेंट करे। ना सिंड्रोम्स का वर्ड आया, ना क्वेश्चंस आए, ना ओरिजिन्स आए। बिल्कुल बिल्कुल, की में भी यही है, वो रिसर्चेस की बात कर रहा है, स्टडीज की बात कर रहा है। डॉक्टर क्योंकि होएवर के बाद स्टडीज में ही सारी डिटेल है। जैसे ऐसे है कोई उसका टॉपिक है तो उसके अंदर सारी बात चलती जा रही है, क्योंकि सब्जेक्ट मुझे और कोई नजर नहीं आया कि कोई और के ऊपर बात हो। सही। Dr. Farron suggests that the group of patients diagnosed with adult onset ADHD. Dr. Farron suggests that the group of patients diagnosed with adult onset ADHD had teachers or parents who recognized the symptoms of ADHD, should have consulted a doctor at a younger age, had mild undiagnosed ADHD in childhood, were especially chosen by researchers. Dr. Farron suggests that group of patients who diagnosed with adult onset ADHD. डॉक्टर फरोनिंग की बात जहाँ है वहीं से आंसर शुरू हो जाएगा। तो वो ये वाली लाइन से ही है, however an editorial by Dr. Stephen Farron in JAMA Psychiatry highlights. However, an editorial by Dr. Stephen Farron in JAMA Psychiatry highlights potential flaws in the findings. Among them, underestimating the persistence of ADHD into adulthood and overestimating the prevalence of adult onset ADHD. In Dr. Farron's words, the researchers found a group of people who had sub-threshold ADHD in their youth. There may have been signs that things were right, but not enough to go to a doctor. Perhaps these smart kids with particularly supportive parents or teachers who helped them cope with attention problems, such intellectual and social scaffolding would help in early life. But when the scaffolding is removed, full ADHD could develop. Dr. Farron suggests that the group of patients diagnosed with adult onset ADHD had teachers or parents who recognized the symptoms of ADHD. वो हेल्प कर रहे हैं, वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, वो उनकी हेल्प कर रहे हैं वो पढ़ने में। कंसल्ट डॉक्टर की बात यंगर एज में तो नहीं है। माइल्ड अनडायग्नोज्ड एडीएचडी इन चाइल्डहुड, ये भी मुझे डी लग रहा है, पता नहीं, लग तो मुझे भी डी रहा है एलिमिनेशन के हिसाब से। सवाल नंबर 19 में सी सही है, had mild undiagnosed ADHD in childhood. Had mild undiagnosed ADHD
चाइल्डहुड अडल्ट ऑनसेट ADHD वालों को माइल्ड थी। वो कहता है ना कि जब वो बच्चे थे तो उनको अम्मा अब्बा और टीचर्स ने वो किया, हेल्प किया, ठीक है, और जब वो उनका कवर हटाया गया तो उनको फुल डेवलप हो गई। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे खुद के ऊपर भी यही लगता है कि व्हेन आई वाज किड आई वाज गुड, बट अभी मुझे ADHD टाइप ऑफ थिंग्स लगती हैं, ठीक है। फुल ADHD हाँ, तो ये यहाँ से could ये develop. ठीक है, ये पूरी ही बात जहाँ से वो आ रही है ना, द रिसर्चर्स फाउंड अ ग्रुप ऑफ पीपल दे मे हैव बीन साइंस, यहीं से बात शुरू हो गई है। थिंग्स वर नॉट राइट बट नॉट इनफ टू गो टू डॉक्टर, यानी कितनी बुरी भी नहीं थी कि वो डॉक्टर के पास चले जाते। फिर आगे बात कर दी उन्होंने पेरेंट्स और टीचर्स की कि वो उन्होंने सपोर्ट किया उनको, यानी कि उनको मसला था, साइंस थे, तो इन लोगों ने उनको सपोर्ट किया, रिकॉग्नाइज नहीं किया। जैसे वो ऑप्शन है तो इसलिए वो ऑप्शन नहीं बनती, बिल्कुल। वो उसकी उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो वो चाइल्डहुड से आ गई ना फिर। In fifth graph, it is suggested that drug companies have been overly aggressive in their marketing of ADHD medication, influenced research that led to the reworking of ADHD diagnostic criteria, attempted to change the rules about incentives for doctors who diagnose ADHD, encouraged the APA to rush through changes to the criteria for diagnosing ADHD. Fifth paragraph. Until this century, adult ADHD was a seldom diagnosed disorder. Nowadays, however, it's common in mainstream medicine it's common in mainstream medicine in the USA. A paradigm shift apparently driven by two factors: reworked, many say less stringent diagnostic criteria introduced by the APA in 2013 and marketing by manufacturers of ADHD medications. Some have suggested that this new broader definition of ADHD was fueled, at least in part, to broaden the market for medication. In many instances, the evidence proffered to expand the definitions came from studies funded in whole or part by manufacturers. And as the criteria for condition loosened, reports emerged about clinicians involved in diagnosing ADHD receiving money from the drug makers. आई थिंक ए होना चाहिए कि वो नहीं aggressive कर रहे हैं नहीं, ये नहीं बनता। ओवरली अग्रेसिव देखे ना, वो ओवरली अग्रेसिव तो नहीं है ड्रग कंपनीज उसके लिए, ठीक है। तो ओवरली अग्रेसिव से मैंने तो उसको निकाल दिया। ये डॉक्टर वाली बात भी नहीं है, ये अगर सी में ने देखी है, मेरे हिसाब से ये भी नहीं बनता। अटेम्प्टेड टू चेंज द रूल्स अबाउट इंसेंटिव्स ऑफ डॉक्टर्स हु डायग्नोज ADHD, मुझे ये वाली भी नहीं लग रही। या तो बी है या डी, इनमें से कोई आएगा। इसमें बी सही है। इन्फ्लुएंस्ड रिसर्च दैट लेड टू द रीवर्किंग, क्योंकि रीवर्किंग की तो बात हो रही है उसमें, जो पहले उन्होंने बात की है इधर। रीवर्क टू फैक्टर्स है, एक रीवर्क के ऊपर है और एक आगे, हाँ, और इसके आगे ही है इंट्रोड्यूस बाय द APA इन 2013 रीवर्क के साथ उसी लाइन में, तो ये भी हो सकता है, पता नहीं। एक मिनट दो तो मुझे, एक मिनट कॉल आ रही है, एक मिनट सिर्फ मुझे। ओके, हमने यहाँ पर इसको स्किप किया ना। In the final paragraph, the word trademark refers to physiological reaction, a substitute medication, need for research, a तो उसका तो आंसर निकालना नहीं, उसका क्या समझ आई? इन्होंने बोला influenced research that led to reworking of ADHD diagnostic criteria। हाँ, मैं इस पे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, बट उन्होंने दिया है तो सही होगा, क्योंकि उन्होंने बोला कि दो चीज़ें हैं। एक है रिवर्किंग, कि डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को आपने रिवर्क किया था, ठीक है। यहाँ पर जब इन्होंने दिखा ना, हाउ इट इन मेन स्ट्रीम USA,
यहाँ पर लिखा कि पैराडाइम शिफ्ट हुआ 2 फैक्टर्स की वजह से। एक है रीवर्क्ड, ठीक है, कि रीवर्क्ड का मकसद मैनी से लेस स्ट्रिंजेंट डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, कि ऐसी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो काइंड ऑफ मतलब इतनी ज़्यादा सख्त नहीं है, ठीक है, कि जिसमें आपने लीनियंसी शो कर दी कि भाई अगर किसी का बैठे बैठे चाय पीते पीते दिमाग कहीं जा रहा है तो वो भी ADHD है, ठीक है। जैसे अभी अब मेरे साथ पढ़ रही है, आपका ध्यान कहीं चला गया कि यार सालन पकाने रखा हुआ है, ठीक है, ये भी ADHD कर दिया उन्होंने, हालांकि ये तो नॉर्मल फिनोमिना है, तुम दूध उबालने रख के आई हो, दैट सी बात तुम्हारे ध्यान में आएगी वो चीज़। इसका मकसद ये तो नहीं है कि तुम्हारा दिमाग बना ही सिर्फ एक ही थॉट पर काम करने के लिए, ठीक है। तो ये इस तरह कहना चाहते हैं। अब मैं इसलिए इसमें राजी नहीं हूँ क्योंकि जो रिवर्क है उसमें इन्होंने कंपनी का तो जिक्र ही नहीं किया। कंपनी का जिक्र इन्होंने अलग से किया है कि मार्केटिंग बाय मैन्युफैक्चरर्स ऑफ ADHD मेडिकेशंस, some have suggested that this new broader definition of ADHD was fueled at least in part to broaden the market for the medication blah blah blah, इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। मैं इस पे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, इन्होंने बोला है तो मान लेते हैं इसको। मैं फिलहाल स्क्रीनशॉट निकाल के रखता हूँ, इसका मैं आपको सर्च करके दूंगा फिर, सही है, ChatGPT से पूछ के मैं आपको भेजता हूँ फिर, ओके। लेकिन अगर ये नीचे वाला देखा जाए इनकरेज द API, तो API को इनकरेज वाली तो बात नहीं हुई। तुम ओवरली अग्रेसिव की बात क्यों नहीं कर रही? मार्केटिंग इतनी ज़्यादा उन्होंने मार्केटिंग की है कि वो जो ये क्या है, अगर वो पैसे दे रहे हैं अपने डॉक्टर्स को तो वो क्या कर रहे हैं? ये यहाँ पर इसने बात की है, यहाँ पर एक पूरा सा इसने वो बनाया हुआ है कि मार्केटिंग बाय द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ ADHD मेडिकेशन, सम हैव सजेस्टेड दिस न्यू ब्रॉडर डेफिनेशन ऑफ ADHD फ्यूल्ड, ये देखो, एटलीस्ट इन पार्ट टू ब्रॉडन द मार्केट फॉर मेडिकेशन। फ्यूल्ड का मकसद क्या होता है? किसी चीज़ को बढ़ावा देना होता है ना, तो आग तो नहीं लगा रहे ना कंपनियों में, ठीक है। इन मेनी इंस्टेंस एविडेंस प्रोफर्ड टू एक्सपेंड द डेफिनेशंस कम फ्रॉम द स्टडीज फंडेड। हाँ, ये हो सकता है कि यहाँ पर जो उन्होंने बात की थी, हो सकता है कि ये जो इन्फ्लुएंस वाली बात कर रहा है वो इससे रिलेटेड कर रहा है कि इन्होंने कंपनियों ने क्या किया, ये नॉर्मली कंपनीज करती भी हैं ऐसी जो फर्स्ट तुम एक ड्रग बना रही हो पैरासीटामोल, ठीक है, अब तुम क्या करोगी एज ए कंपनी हो, तो तुम उसकी रिसर्च पे जाओगी कि कितना वो बुखार को कम करती है, फिर उसको तुम एक्सपेंड करोगी, हमारी रिसर्च ये कहती हैं, हमारी सुनने में तुम्हें फैंसी लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, कि वो चीज़ फिर मार्केट करते हैं। द एविडेंस प्रोफर्ड टू एक्सपैंड द डेफिनेशंस केम फ्रॉम द स्टडीज फंडेड इन द होल और पार्ट बाय द मैन्युफैक्चरर्स। हाँ, ये हो सकता है, ठीक है, इस हिसाब से, लेकिन रिवर्क का बस फिर उसको उसमें कहते हैं कि वो मतलब बियॉन्ड द लाइन सोच के जाना पड़ेगा, ठीक है। एंड एज द क्राइटेरिया फॉर द कंडीशन लूजेंड रिपोर्ट्स इमर्ज्ड अबाउट रिलेशंस इन्वॉल्व्ड इन ड्रग मनी, वो लेके फिर वो ड्रग वो प्रेस्क्राइब करते थे, ठीक है। ठीक है, देखते हैं। ऐसे तो ये भी अटेम्प्टेड टू चेंज द रूल्स, हालांकि रूल्स नहीं चेंज किए उन्होंने, ये गलत है। एनकरेज द APA टू रश थ्रू, कहाँ लिखा है कि उन्होंने APA को कुछ बोला कि ड्रग ये तो मैं कह रही हूँ कि अगर वो एलिमिनेट किया जाए तो उस हिसाब से B निकलता है, एलिमिनेशन से, ओके। फिर एलिमिनेशन आप ओवरली अग्रेसिव मतलब आप एलिमिनेट कर रही हैं, हालांकि मैं इस पे अटक रहा था, ठीक है, B मान लेते हैं, और क्या। ओके, इन द फाइनल पैराग्राफ द वर्ड ट्रेडमार्क रिफर्स टू, क्योंकि इन पे जो की के मिस्टेक है ना, फॉर सपोज इसमें उस पे आप बैसा करके कुछ नहीं निकाल सकते, ना ही अपना माइंड बना सकते हो। तो अगर की का यहाँ पर वो आ रहा है ना, बस मैंने यही सोच लिया कि छोड़ दो, क्योंकि ये MCQ तो है नहीं कि मैं इसको याद कर लूँ और इट इज आएगा, ठीक है। नहीं, की मुझे तो नहीं पता की में क्या है, मैंने इसकी कोई की नहीं देखी ना, इधर कोई आंसर लिखने पड़ेगा। तुम्हारे की ना देखने से सही थोड़ी ना हो जाएगा, की तो तुम्हें देखनी पड़ेगी ना। मैं उस मुद्दा ही नहीं है ना हमारा, मुद्दा ये है अगर की गलत है तो क्या मैं इस पर लड़ सकता हूँ, झगड़ सकता हूँ? नहीं, कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि एज इट इज तो सवाल आना नहीं है, ये पेपर इंटेलेक्ट का है, इंटेलेक्ट तो मेरे उस पर, अगर उनकी की में भी गलत हुआ मैं क्या करूंगा? मार्जिन लेके चलो, उन्होंने भी तो तुम्हें 10 सवाल का मार्जिन दिया हुआ है ना, वो बोले तुम्हें 42 में जाओ 40 सही करो, तुम क्या करोगे? उनके सामने रूल बना दे, कुछ बोल होगी? बेहतर है कि तुम 5 बाकी सही करो, एक वो वाला जो नसीब। अच्छी बात है ना, अगर की गलत है तो तुम्हारे घर पे ही गलत हो रहे हैं, 1-2 का तो मार्जिन तुम्हें लेना पड़ेगा, समझ रही हो? सही। उस अपनी सोच को ब्रॉडन करना पड़ेगा भाई, अगर की गलत है चशान की, अगर 40 में से 2 सवाल गलत है तो वहां भी तो हो सकते हैं ना मेन एग्जाम में। यहाँ तुम्हारे तुक्के लगते हैं, जब तुम्हारा तुक्का लग गया तो तुम उसे गिनती हो स्कोर में, यार मेरा तो स्कोर अच्छा आ रहा है, तुक्के वाला तुम्हें चाहिए पॉजिटिव में, लेकिन जो नेगेटिव हो रहा है वो नहीं चाहिए। सो आई एम सेइंग कि ठीक है, जो भी है मेरे हिसाब से बी मुझे समझ नहीं है, मुझे स्टिल ए समझ आ रहा है,
ठीक है, इन्होंने किया है तो ओके, आगे बढ़ते हैं। ट्रेडमार्क का मकसद क्या है? दिस इज बिकॉज द बॉडी स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग द अप्रोप्रिएट लेवल्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स दैट ADHD drugs replace. A trademark of addictive substances. Physiological reaction, substitute medication, need of research, common request. Again, this brings us to the issue of addictive nature of ADHD medication. Addiction to stimulant medication isn't rare, it's common. Just to observe the many patients periodically seeking an increased dosage is their power of concentration diminished. This is because the body stops producing the appropriate levels of neurotransmitters that ADHD drugs replace. A trademark of addictive substance. I think a common request हो सकती है फिजियोलॉजिकल रिएक्शन, इसका की है, ठीक है, समझ आया? ये फिजियोलॉजिकल रिएक्शन मेरे ख्याल से ठीक है। ये वो हम पढ़ते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, टॉलरेंस, पढ़ा है टॉलरेंस, ओपियोइड की टॉलरेंस। फिजियोलॉजिकल रिएक्शन ये बनेगा कहाँ से? हाँ हाँ, क्या कह रही हो? ये कहाँ से बनेगा? ये कहाँ से बनेगा? ओके, देखो टॉलरेंस का पता है तुम्हें? ओपियोइड में टॉलरेंस होती है, जो अफीमी चरसी होते हैं वो ओपियोइड का एक डोज लेते हैं, फिर उससे उनका मज़ा आना बंद हो जाता है, फिर बढ़ाते हैं डोज, फिर और डोज बढ़ती जाती है। हाँ, इसको कहते हैं टॉलरेंस, ठीक है। सेम होता है ADHD वालों, क्योंकि ADHD में हम देते हैं एम्फेटामिन और नॉर एम्फेटामिन, अपना ये एड्रिनलिन नॉर एड्रिनलिन बढ़ाते हैं हम लोग सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, अगर याद हो तो, ठीक है। वहाँ पर अगर तुम एम्फेटामिन दोगी तो एम्फेटामिन क्या करता है, जो नॉर एड्रिनलिन नॉरेपी होता है उसकी सर्ज को बढ़ाता है। जब तुम ये दोगी तो उससे क्या होगा कि अपना डोज बढ़ाते जाएंगे। तो ये एडिक्टिव सब्सटेंस का एक फिजियोलॉजिकल रिएक्शन है। एडिक्टिव सब्सटेंसेस एडिक्टिव क्यों होते हैं? या चाय है फॉर सपोज, एडिक्शन क्यों है तुम्हें चाय की? वो कहते हैं हलाल नशा चाय को, ठीक है। कहने का मकसद सिंपल क्या है कि अपना नशा ही तो है ना, नशा वो थोड़ी था जो तुम्हें धुत करे, नशा तो था जो तुम्हें एडिक्शन दे ना। तो वो बार बार क्योंकि हमें निकोटिनिक जो वो है, हमारे जो रिसेप्टर्स हैं वो अब बॉडी नहीं बना रही वो वाला निकोटीन, तो हम खुद बना, वो हमें बाहर से लेना पड़ रहा है। चाय में थियोफाइलिन होती है, ठीक है, निकोटीन पता नहीं क्यों बोलते हैं, लेकिन थियोफाइलिन होती है, तो उस हिसाब से गॉट इट। ट्रेडमार्क इज अ फिजियोलॉजिक रिएक्शन, जो चाय का भी होता है, जो हर एक एडिक्टिव सब्सटेंस का होता है। ओके ओके, इन द फाइनल पैराग्राफ what does the writer imply about addiction to ADHD medication? Okay, it is unlikely to turn into a problem on the scale of that caused by opioid abuse. The effects are more marked in certain sectors of the population. Insufficient attention seems to have been paid to it. The reasons for it are not yet fully understood. Okay, कह रहे हैं कि जो राइटर है वो क्या सोचता है, फाइनल ग्राफ में क्या इम्प्लाई कर रहा है अबाउट द एडिक्शन टू ADHD मेडिकेशन। ओके, यहाँ तक हमने पढ़ा था ना, एडिक्टिव तक। मच हैज बीन रिटन अबाउट द स्टैगरिंग इंक्रीज इन ओपियोइड ओवरडोज एंड abuse of prescription painkillers in USA, but the abuse of drugs used to ADHD is no less a threat. कि भाई आपको तो ये लगता है कि अभी मैं ADHD की जगह इवन मैं चाय को इस्तेमाल करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर हमने एग्जाम्पल दिया है। आपको तो ये लगता है कि जो ओपियोइड है वो ख़राब है, कि ओपियोइड लेने से, अफीम लेने से आपकी टॉलरेंस बढ़ जाती है, तो आप बार बार उसको लेते रहते हो, और वो एक मतलब मायूब बात समझी जाती है, ठीक है। लेकिन अगर एक बंदा चाय के 5 कप पीता है या 6 कप पीता है तो उसको मायूब नहीं समझा जाता। ठीक है, पी रहा है तो पी रहा है, खैर है, घर का बच्चा है, लेकिन वो भी एक नशा है, वो भी एक आदत है। इसी तरह से जैसे चाय की थ्रेट है, इसी तरह से ADHD की ड्रग्स की भी थ्रेट है, कि वो भी जो है बार बार लेते रहेंगे। हाँ, ये अलग बात है कि ओपियोइड्स आर मोर लेथल देन प्रिस्क्रिप्शन स्टिमुलेंट्स दैट आर पैरेलल बिटवीन द ओपियोइड एपिडेमिक एंड इंक्रीज इन द प्रॉब्लम्स टाइड टू स्टिमुलेंट्स। ठीक है,
कि भाई जो ओपियोइड्स है मोर लेथल है प्रिस्क्रिप्शन स्टिमुलेंट से। बट रही बात ओपियोइड एपिडेमिक की, यानी ओपियोइड के यूज़ की, कि अगर तुम देखोगी कोई मिसाल कोई एक जगह का खास रीजन है, फॉर एग्जाम्पल न्यू जर्सी है, अगर वहाँ पे न्यूयॉर्क है, अगर वहाँ पर यूज़ हो रहा है तो एपिडेमिक आएगा, लोग वहाँ पर यूज़ करना शुरू कर देंगे, ठीक है, एडिक्शन वहाँ पर फैल जाएगी। इसी तरह से स्टिमुलेंट का भी यही सीन है। हाँ, स्टिमुलेंट का भी यही सीन है। देखने में वो तुम्हें ड्रग्स मेडिसिन नज़र आती है, लेकिन उनका एडिक्शन पोटेंशियल है। ओके, In the former, users switch from prescription narcotics to heroin and illicit fentanyl with ADHD drugs. अच्छा, यूएस और यूके में, ये यूएस का तो मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, मूवीज़ वगैरह से बता रहा हूँ कि वहाँ पर जो नारकोटिक्स होती है, जैसे मॉर्फिन का कोई एडिक्ट है ना बंदा, या पेन किलर जिसको चाहिए, तो वहाँ पर स्पेशल स्टोर्स होते हैं गवर्नमेंट के लॉ के अंदर कि वहाँ पर आप प्रिस्क्राइब ड्रग्स ले सकते हो। लेकिन क्योंकि अब प्रिस्क्रिप्शन से तुम्हारा काम नहीं चल रहा होता, तो बंदा कहाँ शिफ्ट करता है? चर्च पे, मतलब इस पे अफीम, हेरोइन पे, हाँ ठीक है। हालांकि कोकेन का अलग काम है, ओपियाइड तो वो होता है एंडोर्फिन्स को वो करता है ना, छेड़ता है, एंडोर्फिन मज़ा दिलाता है तुम्हें, मतलब पेन को किल करता है। विथ ADHD ड्रग्स पेशेंट्स आर स्विचिंग फ्रॉम लीगली प्रिस्क्राइब्ड स्टिमुलेंट्स टू इलिसिट, जैसे मेटाम्फेटामिन एंड कोकेन। अब तुम बात करो कोकेन की, ठीक है। द मेडिकेशन इज पर्टिकुलरली प्रोन टू अब्यूज बिकॉज पीपल फील इट इम्प्रूव्स देयर लाइव्स। These drugs are antidepressants, aid weight loss, and improve confidence, but can be abused by students seeking to improve their focus or academic performance. एक वेब सीरीज़ देखी थी मैंने, कोई इंडियन वेब सीरीज़ थी, उसमें बच्चों को ये एम्फेटामिन दे रहे थे, मतलब वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन करके एम्फेटामिन दे रहे थे वो अकेडमी वाले बच्चों को, फर्स्ट ईयर और जो 12th पढ़ते थे, ठीक है, जस्ट टू इम्प्रूव देयर फोकस। और होता है कोकेन से भी फोकस आपका इम्प्रूव होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कोकेन स्टिमुलेंट सिंपैथेटिक है, सिंपैथेटिक जगा के रख देगा, तुम्हें नींद ही नहीं आएगी, सारा दिन पढ़ती रहोगी बैठ के, ठीक है। सो मोर वर्क नीड्स टू बी डन बिफोर वी कैन सेटल द क्वेश्चंस सराउंडिंग द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ ADHD। कि भाई तुम जो ADHD को इतना मशहूर करते जा रहे हो, कहीं कल को ये ना हो कि हमारे गले आके पड़े, ठीक है। अब साइंटिस्ट क्या कहता है इसके बारे में? इन द फाइनल पैराग्राफ राइटर इम्प्लाई about what does writer imply about the addiction to the ADHD medication. It is unlikely to turn into a problem on the scale of that caused by opioid abuse. ऐसी कोई बात उसने नहीं की थी। The effects are more marked in certain sectors of the population. ऐसा भी नहीं बोला था उसने, कोई रेसिज्म कोई उसने शो नहीं किया था कि हाँ, मतलब रेस वगैरह का उसने कुछ नहीं बोला था कि certain sectors में। मेरे हिसाब से insufficient attention seems to have paid to it. छोड़ो, the reasons for it are yet not fully understood. मेरे हिसाब से अगर इनको देखता हूँ तो मुझे शायद A लगता है, बाकी ऑप्शंस को देखता हूँ तो ये लगता है कि यार ओपियोइड वाला ज़्यादा खतरनाक है एज़ कम्पेयर टू दिस। अब आई डोंट नो कि सही है गलत है, मैं गलत हूँ क्योंकि की में कुछ और है। बताओ इन तीनों ऑप्शंस में से क्या करोगी? एक मिनट मुझे जो है ना, हाँ, C और D में से कोई लग रहा है। हाँ ठीक है, रीजंस का उसने नहीं बोला था, C सही है, इनसफिशिएंट अटेंशन की वजह से ही सारा जो है वो मसला हो रहा है। देखो सिंपल रीज़न क्या है, जब से मीडिया आया है ना, मीडिया अपना सोशल मीडिया से पहले मीडिया, जब से मीडिया आया है आपका जो अटेंशन है वो डिवाइडेड हो गया है, क्योंकि उसमें हर 5 सेकंड के बाद कलर चेंज हो रहा है। फॉर सपोज तुम दीवार को नहीं देख सकती आज के ज़माने में 15 मिनट, तुम कभी ट्राई करना, ठीक है। तुम दीवार को सामने बैठ के दिस इज एक्चुअली अ प्रैक्टिस जो तुम्हें फोकस इंप्रूव करती है कि खाली प्लेन दीवार को 5 मिनट देखो बैठ के, ठीक है। लोग तुम्हें पागल बोलेंगे, क्यों? क्योंकि लोगों के लिए ये एबनॉर्मल हो गया है खाली चीज़ों को देखना, क्योंकि कलर्स को हमने इतना देख लिया है कि हर 5 सेकंड या हर नैनो सेकंड में रील्स हो गए। ये तो अभी हुआ आजकल, चलो क्या रील्स, मूवीज़, हर एक सीन चेंज हो रहा है, ठीक है, विद इन माइन्यूट ऑफ द सेकंड्स, कि फिर उसमें क्या, फिर नैनो सेकंड में तुम्हारा माइंड इतनी चीज़ों को प्रोसेस कर रहा है कि वो उसे समझ नहीं आ रहा कि स्टैग्नेंट रहते कैसे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग मतलब ये मैं जनरली तुम्हें फिलॉसफी बता रहा हूँ क्योंकि मेरे साइकेट्री में खुद का एक इंटरेस्ट है, तो मैं तुम्हें एक वो बता रहा हूँ कि इससे कोई रिलेशन तो नहीं है इसका, ठीक है। सवाल का आंसर इसलिए है
क्योंकि तो हम लोग इनसफिशिएंट अटेंशन पे कर रहे हैं चीज़ों को, इसलिए ही ADHD के मसले हैं, या मे बी इस वजह से अब एडिक्शन टू द ADHD मेडिकेशन पे हमने इतना ध्यान नहीं दिया अभी तक, ठीक है, या हम लोग उस पर ADHD के मेडिकेशन तो दे रहे हैं लेकिन उसके एडिक्शन पे हमने इतना ध्यान नहीं दिया, मे बी ये सेंस में बात कर रहे हैं। चलो ठीक है, क्योंकि अगर ये जो लास्ट लाइन देखी जाए ना, जहां से लिखा है सो मोर, पैराग्राफ की लास्ट लाइन, तो ये जो है ना, ये रिप्रेजेंट कर रही है इस लाइन को। बिल्कुल, सो मोर वर्क्स नीड्स टू बी डन बिफोर वी कैन सेटल द क्वेश्चंस सराउंडिंग द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ ADHD। बिल्कुल, कि हमें और ध्यान देना पड़ेगा, पे अटेंशन की जरूरत है इस चीज पे, ठीक है, उसको डायग्नोस और ट्रीटमेंट के लिए ना। ओके।